Well, first of all, I would like to thank Rani ji and Anil ji who've organized such a beautiful exhibition like this. और पंचम बाज़ार सबसे पुराना एग्जीबिशन है जहाँ पे इतनी सारी औरतें हैं, 90 स्टॉल यहाँ लगा है. इट्स अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सो ब्यूटीफुल. और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ही रूफ़ के अंदर इतने सारे डिज़ाइंस और इस तरह से फैशन को आगे बढ़ाया जा रहा है. ज्वेलरीज हैं, फुटवेयर्स हैं. So it's all because Rani ji has done all these things, which is a great thing, and Anil ji has been supporting. So it's about empowerment of women. I'm very, very proud to be one, and I'm proud to be here too. It's very difficult to say. जैसे अनिल जी कह रहे हैं ज्वेलरी है तो उनको लगता है कि सारी लड़कियों को और जितनी भी औरतें हैं दुनिया में उनको ज्वेलरी बहुत पसंद है, पर ऐसे ज़रूरी नहीं है. I like the different kinds of fabric also, all the fabrics which I've been seeing around, even the way it's been designed and the way it's been presented with different kinds of nets and the materials they've been using. I just realized that beautiful cut pieces are here of jewelries and the designs are beautifully done. So I think the combination and the color combination is also very good of different stalls here. So I like all of them, but especially I think I like the jewelries from Delhi which have come this time and Jaipur. पंचम बाज़ार सबसे पुराना एग्जीबिशन है मुंबई का. सबसे पहले मैंने ये बाज़ार यहीं लगाया एंड मिसेस टाटा ने इसको इनॉग्रेट किया. फ्रॉम देन many dignitaries have come to inaugurate the bazaar and bazaar is my passion. और अब इस बार तो अनिल जी का नाम जुड़ा है मेरे साथ, तो अगले बार ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे ऐसी आशा है मुझे. इस बार माई डॉटर वॉज एक्सीलेंटली, शी हैज़ वर्क वेरी हार्ड एंड माई सन इन लॉ वर्क वेरी हार्ड. होल नाइट दे वर हियर. नो bazaar can be put up without the hard work. Whole night hard work and the publicity and the other things and involvement of the other people and personalities, then you can create a bazaar. And lots of this time many people have come from outside like Jaipur, Jalandhar, Udaipur, then Bangkok. Many people have come. Lots of footwears are here, jewelry, then designer clothes are there, designer ghagras are there. So very different and marble things are there. मतलब under one roof I have tried my best to put up lots of things. I am a child aid association, so I push the NGOs to take part free of charge. I give them a stall. 10 stalls are there free of charge for them. Ismailia Helping Society is doing very well and they want to present me lots of gifts and all, which I have told no, you sell and get the money. But many people are doing very, very well from the NGOs. That's a pleasure for me. And for housewives, I love. पहले हम लोग एक टेबल दिया करते थे. They were very happy to take a table और अपना सामान दिखाएं, कैसे भी बिक जाए, प्रमोट हो जाएं. अब तो they are so promoted. They are doing so well. I am proud of that. That I could do something in my life. Pancham Bazaar is a great initiative by Rani ji, definitely. There's no doubt about it. And it's the oldest exhibition, as what Neetu ji said, but Rani ji also mentioned. It's a great initiative for women empowerment. Today, the world has changed. It's all about how you take ladies forward. And that's what you see at this platform. Taking them in the right direction and really doing a great job for the society at large. Well, first of all, it's a pleasure and I'm very happy that I'm a woman in this life and born as a woman. आज मैं जो भी हूँ अपनी माँ के कारण हूँ, ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगी. Because since my childhood I have been taught to conquer the world. I come from nowhere and stand with the blessings of all my family and my mother, especially my mother. Just been announced as a brand ambassador of Taekwondo of India by Kyuki Won Korea, and I do Umrao Jaan as a play. तो जो ये वास्ट प्लेटफॉर्म है वो मुझे एक औरत होने के कारण ही मिला. और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं कैंसर पेशेंट्स एड्स एसोसिएशन के साथ भी बहुत सालों से काम कर रही हूँ. तो ये सारे NGOs के साथ काम करना और टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एक मेरे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज यहाँ आई हूँ जहाँ पे बहुत सारे NGOs ने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो थैंक्स टू रानी जी जो बहुत अच्छे तरीके से इन लोगों की देखभाल करके इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट Anil ji is a part of it this year, and I hope for coming years he's going to be a part of it and driving us and leading us in the right way. Thank you so much.
वेल यहाँ के I ब्रांड्स तो think so here we should talk only about Pancham, not for any other brand. यहाँ के कोई ब्रांड्स अगर रानी जी मुझे दे दें तो मैं शायद एंडोर्स भी कर दूँ तो आई थिंक 90 स्टॉल्स है तो 90 ब्रांड्स हैं तो कोई ना कोई रानी जी को पसंद आ जाएगा तो शायद एंडोर्स करूँगी। एक्चुअली वंडरफुल इनिशिएटिव है रानी जी का बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे कॉज बहुत अच्छा है बिकॉज इट्स फॉर वुमेन्स एंड इट्स फॉर देयर एम्पावरमेंट एंड बेस्ट चीज़ ये है कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक ही रूफ के अंदर मिल जाती हैं। सो व्हाट बेटर, इतनी गर्मी में आपको कहीं और अलग अलग जगह नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ एक ही जगह आइए, अपनी शॉपिंग करिए और इट्स अ ग्रेट एफर्ट बिकॉज एज अ कस्टमर एज अ बायर वी जस्ट हैव टू कम टू वन प्लेस, शॉप एंड गो, और एक जगह में ही आपको बहुत सारी जगह की चीज़ें मिल जाएंगी। सो ऑब्वियसली इट्स रियली ईजी फॉर अस टू बाय एंड शी हैज़ मेड इट ईजी फॉर अस बिकॉज एक ही रूफ के नीचे आपको अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। सो व्हाट बेटर देन दिस। मॉनसून्स के लिए एक्चुअली मुझे मॉनसून्स बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पसंद है क्योंकि बहुत कीचड़ हो जाता है, बट अदरवाइज़ फर्स्ट ट्रेन ऑब्वियसली सबको बहुत पसंद है। एक बहुत अच्छा सा मिट्टी की खुशबू जो आती है वो मुझे बहुत पसंद है। सो आई एम ऑल सेट फॉर इट और मैं कोशिश करूँगी मैं ज़्यादा बारिश में भीगूँ नहीं, बट येस आई कैन एन्जॉय इट स्टैंडिंग इन साइड माई हाउस वॉचिंग इट फ्रॉम माई बैल्कनी। मॉनसून्स में एक्चुअली ऐसे कपड़े जो अगर आप भीग भी जाएँ तो जल्दी सूख जाएँ, और ऊपर से मतलब बहुत फ्लोई पहनेंगे तो आप कहीं पे भी बाहर जाएंगे, आजकल कीचड़ इतना है, तो एनीथिंग विच इज़ लिटिल शॉर्टर देन यू नो गेटिंग इनटू एनी पॉट होल्स और समथिंग, तो वो बेटर रहेगा ताकि आप ज़्यादा हैवी क्लोथ्स ना पहने, लाइट पहनिए सो दैट ईजिली ड्राई हो जाए। अनिल जी इज़ अ डियर फ्रेंड एंड मुझे ये पता है कि जहाँ पे भी कुछ एक अच्छा कॉज होता है अनिल जी वहाँ ज़रूर होते हैं, एंड आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड ऑफ हिम एंड आई जस्ट वांट टू टेल हिम दैट प्लीज़ कीप डूइंग द ग्रेट वर्क एंड ही रियली ब्रिंग प्राउड टू अस। पहली बात, एक कलाकार को जब ये ज्वेलरी पहननी पड़ती है वो शायद इतनी कमाल की नहीं होती, वो बहुत मीडियोकर रेंज की होती है और ज़्यादातर हैवी बहुत होती है। तो जितनी लेडीज़ ज्वेलरी पहनती हैं उनकी बहुत हालत ख़राब होती है, जो शायद दिखने में और ज़्यादा खूबसूरत लगें स्क्रीन पे, लेकिन जिस तकलीफ़ से वो गुजरती हैं वो हमें बता के उनके हमारे आसपास ही होती हैं। मैं भी जो रोल अभी कर रहा हूँ रज़िया सुल्तान में, सुल्तान अल्तमश का, उसमें भी बहुत सारी ज्वेलरी मुझे दी गई है। वो इतनी भारी है, मतलब मेरा जो मैंने शेरवानी पहनता हूँ वही करीब 8 किलो की है, तो दिखने में अच्छा, लेकिन हाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत लाइट है, मतलब पहनी जा सकती हैं और उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हैं, बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करके जैसे उन्होंने कार्विंग भी किया है, बहुत बहुत बढ़िया है, यहाँ पे लेवल अच्छा है, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। शूट के लिए तो हम यूज़ कर ही रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कई सारे स्टॉल्स डेफिनेटली ऐसी हैं जिसमें जो मैं एज ए सुल्तान वो गले में हार वगैरह पहन सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक ज़ाती ज़िंदगी का सोचा जाए तो मुझे खुशी हो रही है कि आज मेरी वाइफ दीप्ति यहाँ पर मेरे साथ नहीं है, वो देहरादून में अपनी मम्मी के पास है, नहीं तो आज बहुत सारा खर्चा होने वाला था। अनिल मुरारका जी ने जो सहायता की है रानी जी की, और रानी जी खुद भी कई सालों से इस तरह की एग्जीबिशन करती हैं, उसमें मैं देख रहा हूँ कि ये अपने आप में सोच बहुत ही अच्छी है कि 10 NGOs को मदद करने का एक नया तरीका मैंने सुना है कि वो उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रही हैं जहाँ पर वो अपने आर्ट को एग्जिबिट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सोच है। ये कंटिन्यू वो करें और इसमें उन 10 लोगों को फ़ायदा हो, वो आगे उन्हें कुछ इस तरह की मदद मिले, यहाँ से कुछ ऐसे लोग उनके साथ जुड़ें जो स्टॉल लगाने की उनको आगे ज़रूरत ही ना पड़े, ऐसी मेरी कामना है। मेरे हिसाब से तो औरतें वैसे ही मर्दों से कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनको सिर्फ सही दिशा अगर नज़र आ जाए तो वो बहुत आगे जा सकती है, और क्षमता उनमें मर्दों से कहीं ज़्यादा है। जो मर्द एक्सेप्ट नहीं करते वो थोड़े से बेवकूफ़ हैं या खुद कमज़ोर हैं, जो उनको आगे बढ़ने नहीं देते। आई थिंक दे आर वेरी टैलेंटेड एंड जितना हो सके हमें जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं वैसे ही सपोर्ट करके आगे बढ़ना चाहिए। बस एक्चुअली मैं अपने बेस्ट विशेस देना चाहूँगा, और रानी जी बहुत ही करीबी फ्रेंड हैं, बहुत ही मैं उनको मम्मा कहता हूँ, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो आई एम हियर, और मैंने जितना बहुत देख सका हूँ अभी तक, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ज़्यादातर लेडीज़ गारमेंट्स और एक्सेसरीज़ हैं इधर, बट आई एम सीइंग एवरीथिंग इज़ क्वाइट ट्रेडिशनल कल्चरल, और काफ़ी इसमें एक यूनिकनेस लग रहा है, तो आई एम गोइंग टू पिक अप समथिंग। मॉम के लिए डेफिनेटली कुछ पिकअप करने वाला हूँ अभी। मैंने अभी अपने लिए तो कुछ देखा नहीं, मुझे अभी तक आई हैव नॉट स्टार्टेड वेयरिंग
लेडीज़ गारमेंट्स एक्सेसरीज, पर मॉम के लिए डेफिनेटली एक पर्स मुझे नज़र आया है जो आई वुड वांट टू पिक अप। वेल ये एग्जीबिशन है जो औरतों को सपोर्ट करता है। इट्स अबाउट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। 35 सालों से ये एग्जीबिशन ये लगा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती से 90 स्टॉलों को एक साथ अंडर वन रूफ लेकर आते हैं, जहाँ पे फैशन, लाइफस्टाइल्स, एंटरटेनमेंट की चीज़ें दिखाते हैं। सो इट्स अ ग्रेट थिंग दैट कि सारी औरतों को एक साथ इकट्ठा करके, बहुत सारे NGOs भी इसके पार्ट हैं। सो इट्स अ ब्यूटिफुल असेंबलेंस। Well, I just finished a Greek film and I've been doing Umrah Jan play for almost 30 performances ख़त्म हो गए। Just been announced as a brand ambassador of Taekwondo of India by Koreans and doing 2 Hindi films which इस साल रिलीज़ हो जाएगी। It's finished and they're working on post production. I've been doing Taekwondo for 14 years. I'm a black belt 4th Dan. I've represented India 3 times. तो ऐसी कोई नई चीज़ नहीं है जो मैंने अचानक से 1-2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुई हूँ और मैं कर रही हूँ। मैं 14-15 सालों से कर रही हूँ। सो आई थिंक आई हैव ग्रोन विद इट, छोटे से ही कर रही हूँ। तो इट्स अ गुड थिंग दैट आई एम एंडोर्सिंग अ स्पॉट। वेल कोई जानबूझ का आई डोंट थिंक कि वो ऐसा गलत करने की कोशिश करता है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है। यू नॉट वेरी श्योर ऑफ इट, बट ऐसा हो जाता है कि कभी गलती भी हो जाती है और कभी कभी इट्स डजंट मैटर ऑल्सो बिकॉज इट्स नॉट डजंट कम आउट टू बी सो बिग।